Hello friends and students, welcome to Pooja Khatri's channel. So today we are going to discuss about carbohydrate, that is the organic compound. So it is abundantly found in all living cells, and carbohydrate literally mean that it is a hydrated carbon. Means how it is a hydrated carbon, because in this hydrogen oxygen ratio is same as in water, and carbohydrate is made up of many saccharides. So saccharide means sugar. It is a covalently bonded. Whenever two or more than two saccharides join together by the covalent bond, and the bond which is created in between them is known as a glycosidic bond. This is the general formula of carbohydrate. This is a CN and shows the number of carbon, and this is the water ratio, as जिस तरह से पानी के अंदर जो रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेम इस तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया तीन क्लासेस के अंदर: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। फर्स्ट वन इज अ मोनोसेक्राइड. So this is known as simple sugar because it cannot be further hydrolyzed into any simple sugar. And monosaccharides are sweet in taste and easily soluble in water. You know what? There is a two functional groups, that is polyhydroxyaldehydes or ketose. This is the functional group. Whenever अगर किसी सेक्राइड के अंदर अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ सेवरल OH मतलब के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, तो उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड डिस्क्राइब करेंगे. This is the examples of monosaccharides: glucose, fructose, galactose. There are some other examples: deoxyribose, which is found in the DNA, and ribose sugar, which is found in the RNA. This is the further classification on the basis of number of carbons. Whenever you see here, the first one is a aldose, because in this there is an aldehyde group. Ketose, there is a ketone group. Triose, 3 number of carbons. Pentose, 5 number of carbons. Hexose, 6 number of carbons. Next classification is oligosaccharides. Oligo means few saccharides, and it is a less sweet in taste एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड की कंपेरिजन में ये लेस टेस्ट होते हैं और ये लेस सोल्युबल इन वाटर होते हैं, और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइंट होते हैं. और ये ओलिगोसेक्राइड मोस्ट अबंडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, और इसको कॉमनली हम डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं. अब टू हेक्सो शुगर्स यूनाइट टू फॉर्म डाइसेक्राइड. दो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे तो हम उसको डाइसेक्राइड कहेंगे. Here are the examples of the disaccharide. This is a lactose. Whenever glucose plus galactose combine together, they form lactose, and this is a sugar which is formed by the glucose plus fructose, as you see here. These are different sources and examples. Maltose. Maltose is also disaccharide, and it is formed by the two glucose molecules. Lactose, which is found in the milk sugar, means it is a milk sugar because naturally it is present in the milk, and it is formed by the glucose plus galactose. Sucrose is a table sugar which is formed by the glucose plus fructose. Now third class is polysaccharides. Is the most complex and abundant in nature. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और ज़्यादा अमाउंट में नेचर में पाई जाती है. टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है. पॉलीसेक्राइड्स में हंड्रेड से थाउजेंड्स मोनोसेक्राइड्स यूनाइटेड होते हैं. Examples are starch, cellulose, and glycogen. This is a starch which is found in the plants, made up of glucose monomers. Storage, excessive sugar. Starch प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनती है, और जो एक्सेसिव अमाउंट में होती है वो स्टोर होती है. ग्लाइकोजिन भी एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्टोर होते हैं एनिमल्स के लिवर और मसल्स में. सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये भी ग्लूकोज मोनोमर्स का बना होता है, और ये प्लांट सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है.
तो सबसे पहले स्टार्च को देख लें, द रिजर्वर फूड ऑफ प्लांट. व्हाट यू सी दैट whenever the glucose molecules join in a straight chain is the amylose, and amylopectin is a branched off chain of glucose molecules. It's a branch chain. It starts insoluble in water and it can be converted into simple sugar by hydrolysis. Example, you can say here the starch. Cellulose is a glucose polymer. It is also produced by the plant and is found in straight chain. मतलब कि इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में आपस में ज्वाइंट होते हैं. ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है नेचर में और ये मेन पार्ट है प्लांट की सेल वॉल का. ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है. ग्लाइकोजीन जो कि एनिमल का रिजर्वर फूड है, ये मेनली स्टोर होता है मसल्स और लिवर में, इनसोल्युबल इन वाटर है और कॉमनली इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है. हियर आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. एज यू कैन सी हियर सोर्सेज. सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है जो कि स्टार्च है. स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बनता है, ये भी प्लांट में पाया जाता है. ग्लाइकोजीन जो एनिमल में पाया जाता है, ये बीटा ग्लूकोज के सब यूनिट से बना होता है. स्टार्च अल्फा ग्लूकोज के यूनिट से और अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज से. ग्लाइकोजीन भी अल्फा ग्लूकोज से बना होता है. इसके अंदर 1 से 4 बांड होते हैं. इनके अंदर भी 1 से 4 बांड होते हैं. अमाइलोपेक्टिन में 1 से 6 बांड भी हो सकते हैं और ग्लाइकोजीन में भी 1 से 6 बांड हो सकते हैं. सेलुलोज के अंदर कोई ब्रांच चेन नहीं होती. ब्रांच ने अमाइलोज में भी नहीं होते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में होते हैं और ग्लाइकोजीन में भी होते हैं. As you can see here the diagrams and the shapes. Now the functions of carbohydrates. So carbohydrate as a major source of energy in animal body and is essential component of production, temperature control and proper function of different parts of animal body. And mainly it is an essential component of milk because it is found in the milk as a lactose. They are also stored as a glycogen excessive of carbohydrates इन दी डाइट. अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सेसिव ग्लूकोज खा लिया है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होगा ग्लाइकोजीन की शक्ल में. और प्लांट के अंदर भी एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है स्टार्च के अंदर. एनिमल की बॉडी में ये स्टोर होता है लिवर और मसल्स में. कार्बोहाइड्रेट हेल्पफुल है कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में, स्पेशली यंगर एनिमल्स, और उसे सीक्रेट करने में भी हेल्प करता है जीआईटी के अंदर. क्लास इज अ लिपिड. It's a diverse group of biological molecules. It's a naturally occurring compound. The term lipid is proposed by Bloor in 1943, and it is insoluble in water, but it is soluble in organic solvent. Classification: acylglycerol or triglycerol, fat and oils. Second is a waxes, third is a phospholipid, and fourth is a terpenoids. So first is acylglycerol, which is found in the plant and animal cell. And it is stored double energy as compared to the carbohydrate because of carbon and hydrogen bond. Types of acylglycerol: it's a saturated acylglycerol, which is also known as fats. Unsaturated acylglycerol, which is known as oils. First one is the saturated acylglycerols. So it is a saturated fatty acids in which the single bonds in between carbon atoms. इनके कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं. और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं. ये एनिमल के बीफ और मटन में पाए जाते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कॉमनली ऑयल्स कहते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड होती है कार्बन के और ट्रिपल बॉन्ड भी होती है. ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और ज़्यादातर ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं. एग्जाम्पल लिनोलिन इन कॉटन सीड्स. कॉटन सीड के अंदर ऑयल पाया जाता है. क्लासेस वैक्सेस. वैक्सेस सिंपल लिपिड है जिसके अंदर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है और एक मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन होता है अल्कोहल का, यानी कि एक अल्कोहल की चेन के साथ एक फैटी एसिड अटैच्ड होता है. एग्जाम्पल अगर देखें तो बीजवैक्स प्रोटेक्ट, ये काम क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव कोट बनाता है. और वैक्सेस जो है वाटर रिपेलेंट है. नेक्स्ट क्लास है फॉस्फोलिपिड. ये इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हर लिविंग सेल्स में पाई जाती है और इसकी डिस्कशन डिटेल में
मैं पहले कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिमिलर टू ग्लाइसरॉल एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड विथ फॉस्फेट ग्रुप। ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं ट्राइग्लाइसरॉल की तरह, सिवाय इसके अंदर एक फैटी एसिड रिप्लेस होता है फॉस्फेट से। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये फास्फोलिपिड बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं फास्फोलिपिड की, एक ग्लाइसरोफास्फोलिपिड जिसमें ग्लाइसरोल होता है एज अल्कोहल, और दूसरा होता है स्पेंगो फास्फोलिपिड जिसमें स्पेंगो साइट्स एज अल्कोहल होता है। इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास इज टर्पिनोइड्स एंड दिस द लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, और ये आइसोप्रिनोइड्स यूनिट्स की बनी होती है। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स आ जाते हैं, प्लांट्स के एग्जांपल्स अगर ले लें तो मिथिल, कैम्फर, मिंट, और ये एज अ कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और उसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर भी पिगमेंट्स की शक्ल में पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। इसकी क्लासेस देखी जाए, इसकी सब क्लासेस हैं। टर्पीन्स, टर्पीनेट्स भी जो है आइसोप्रिनोइड्स यूनिट्स के बने हुए हैं। ये वोलेटाइल इन नेचर, इजीली ये एवापोरेट हो जाते हैं और इनके अंदर से जो है स्पेशल फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस होती है। इनको परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ले लें, माइसिनाई ऑयल ऑफ बे, ग्रेनाइल फ्रॉम रोज एंड मिथिल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल, एंड इट इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। इसके अलावा टर्पीन्स को एज अ रबर एंड लेटेक्स को बनाने में यूज किया जाता है। स्टीरॉयड, स्टीरॉयड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम रिंग्स हैं, जिसमें से 3 कार्बन एटम रिंग्स 6 कार्बन वाली हैं और एक 5 कार्बन वाली है। तो टोटल इसमें 17 कार्बन एटम्स हैं और इसके अंदर मेनली कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एट द बोथ एंड। अब ये एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की और उसके दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और मेनली ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने की पिगमेंट्स कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, ऑरेंज या येलो कलर देते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड सब लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और इसके अंदर लॉन्ग चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। इसके दो टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, मेनली डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट्स के बने हैं, एक पेंटोज शुगर, phosphoric group, organic basis. This is the basis, the sugar, and this is a phosphate group. If we see the structure of mononucleotide, so in this is the nitrogen base, this is a sugar, and this is a phosphate group. So this is the adenosine monophosphate, yani AMP. Dinucleotide. Dinucleotide is made up of 2 nucleotides, which is joined together by the covalent bond. Example is the NAD, nicotine amide adenine dinucleotide. And nicotine amide dinucleotide work as a coenzyme which is bind to the enzyme, and it carries the electrons. Whenever it carries electron, it will be reduced to form NADH. Polynucleotide is a DNA and RNA जिसकी डिटेल डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में हो चुकी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। नाउ डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। सो डीएनए जो है वो डिफरेंट बेसिस पे कंटेन होता है, इसके अंदर डिफरेंट बेसिस होती हैं, तो वो डिफरेंट बेसिस इनकोडेड करती हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन, ऐसा जेनेटिक कोड, और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड होती है प्रोटीन की शक्ल में आरएनए से। तो आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, आरएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल में फ्लो इन करता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू द साइटोप्लाज्म। तो 2 मेथड है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड होती है आरएनए से। फर्स्ट मेथड इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपीड होगी मैसेंजर आरएनए में। सबसे पहले डीएनए क्या करेगा, अपने आप से एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। उस मैसेंजर आरएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन ट्रिपलेट्स
कोड के फॉर्म में देगा, फिर वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास आएगा। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें सीक्वेंस जो डीएनए की है वो काउंटर पार्ट ऑफ द डीएनए। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसमें ये होगा कि डिफरेंस है, मेन मेजर डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, वो ये है कि इनके अंदर एडेनाइन है और इनके एडेनाइन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है और आरएनए सीक्वेंस विद ट्रिपलेट कोडॉन। नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशन इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए कोडेड करता है प्रोटीन के लिए और वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी राइबोसोम की। This is the how DNA transcription into the messenger RNA. Now messenger RNA translated into the polypeptides. So this is the start codon, this is the stop codon, and this is the triplets in which the information is coded, which can be encoded. और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, within the cell होता है. This is the cell and this is the nucleus in which the DNA is transcription into the messenger RNA. फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल कर आएगा राइबोसोम के पास और यहाँ पर होगी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन की रिजल्ट में पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। लास्ट is that conjugated molecules, which is made up of two different groups. It is a very complex group because in which there different types of molecules join together. So there are different types of conjugated molecules. First one is a glycolipid. It is made up of carbohydrate and lipid. It is sometimes called as a cerebroside, and it is an important constituent of brain in the form of cerebrospinal fluid. It is commonly found in the chloroplast. Glycoprotein is formed by the carbohydrate and protein. Mainly it is found in the egg albumin. The egg protein is also found in the gonadotropin hormone and in cell membrane. Nucleoprotein also the conjugated molecule. It's made up of protein and nucleic acid and it is found in the nucleus. Lipoprotein is made up of lipid and protein and it is found in the membrane of mitochondria, endoplasmic reticulum and nucleus. It is also found as a myelin sheath on the nerve, chloroplast and bacterial cell membrane. So this is all about the chapter number 2.